Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well. Here is your teacher Sabah Akhtar, lecturer of biology from Army Public School and College. Today we will start chapter number 1 of class metric federal board, which is gases exchange. And this topic is also taken from class 9 Hyderabad board. What are the major concepts of this chapter? Gases exchange in plants, gases exchange in humans, and respiratory disorders. We will discuss gases exchange in plants today, and the remaining two topics we will discuss in our next lecture, inshallah. So what are the objectives of today? You will be able to define gases exchange, differentiate between cellular respiration and gases exchange, distinguish between breathing and respiration, describe gases exchange in plants, and identify stoma and lenticels. My dear students, in grade 9 we have studied how cells generate ATP from food. Cellular respiration is the process in which CH bonds in food are broken by oxidation reduction reaction and the energy is transformed into ATP. क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि सेल जो है वो ATP को जनरेट करते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रोकन डाउन हो जाते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू और एनर्जी जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म होती है ATP में. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन यूज्ड हो रही थी और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही थी फूड मटेरियल की, and as a result carbon dioxide and water are also produced in this process. Organism get oxygen needed for cellular respiration from their cells. देखिए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, अपनी इन्वायरमेंट से लेते हैं और उसको प्रोवाइड कहाँ करते हैं, अपने सेल्स को प्रोवाइड करते हैं. क्यों वो ऑक्सीजन अपनी इन्वायरमेंट से लेते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है. फाइन. Carbon dioxide produced during cellular respiration is taken out of the cells and ultimately from the body. Carbon dioxide जो थी, जो cellular respiration के दौरान produced हो रही थी, वो body से बाहर exhale हो जाती है. Fine? And taking in oxygen and giving out of carbon dioxide is termed as gases exchange. ऑक्सीजन को inhale करना और carbon dioxide को exhale करना या body से बाहर निकालना gases exchange कहलाता है. Now the term breathing is used for the process through which animals take air in their bodies to get oxygen from it and then give out the air for getting rid of carbon dioxide. Breathing क्या थी? Breathing वो process है जिसमें animal air को अपनी body के अंदर लेते हैं ताकि वो ऑक्सीजन ले सकें और then air को body से बाहर exhale out करते हैं ताकि वो carbon dioxide को बाहर body से निकाल सकें. Fine? Respiration और breathing, these both terms are really not synonyms. हमेशा याद रखिएगा. Fine. Respiration involves the mechanical and biochemical processes. देखिए respiration में क्या होता है, ये mechanical और biochemical process है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो भी बॉन्ड्स फूड के अंदर मौजूद थे वो ब्रोकन डाउन हो रहे थे और एज अ रिजल्ट एनर्जी जनरेट हो रही थी. ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड हो रही थी ATP में. लेकिन ब्रीदिंग क्या है, इट इज ओनली दी मैकेनिकल और दी फिजिकल प्रोसेस. ब्रीदिंग क्या है, मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है. ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होती हैं. फाइन. सो दीज बोथ टर्म आर नॉट सिनोनिम्स. सो इट वाज इंट्रोडक्शन. नाउ कम टुवर्ड्स आवर टॉपिक व्हिच इज गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स. Every cell of a plant body exchange gases with environment by its own. Plant body अपनी environment से gases exchange खुद ही करती है because plant have no organ or system for the exchange of gases with the environment. Fine. कैसे exchange करती है? With the help of stomata. Leaves and young stems have stomata in their epidermis and gases exchange occur through these stomata. ये stomata gases exchange में help करते हैं. देखें, look at this diagram. This is open stomata and this diagram is of
closed stomata. Fine. The inner cell of leaves, which are mesophyll, and stem also have air spaces among them which help in the exchange of gases. जो लीफ के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं या स्टेम के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं उनमें भी एयर स्पेसेस मौजूद होती है ताकि वो गैसेस को एक्सचेंज कर सकें. फाइन. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. This diagram shows the cross-section area of a leaf. This is the upper epidermis, this one is lower epidermis, and this is wax cuticle which cover both of these layers from outside. And these are the mesophyll cells which are present in between these two layers, upper epidermis or the lower epidermis. This one is stomata from where the gases exchange occur. And these are the air spaces among these mesophyll cells. Here is another diagram of leaf. This one is cuticle, wax cuticle. This one is also wax cuticle, and this upper layer is known as upper epidermis, while this lower one is known as lower epidermis. And between these two layers, these mesophyll cells are present. The elongated mesophyll cells are known as palisade mesophyll cells, and these round or the oval shaped mesophyll cells are known as spongy mesophyll cells. This is air space which is present among these mesophyll cells. These elongated mesophyll cells, what is the function of these palisade cells or the elongated mesophyll cells? The function of these cell is the absorption of light. Why they absorb light? For the purpose of photosynthesis. ये जो elongated mesophyll cells होते हैं इनका फंक्शन क्या है? ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. क्यों लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकें. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज स्पंजी मेसोफिल सेल्स? द फंक्शन ऑफ दीज स्पंजी मेसोफिल सेल इज टू फैसिलिटेट दीज पैलिसेड मेसोफिल सेल्स. ये फैसिलिटेट करते हैं इन पैलिसेड मेसोफिल सेल्स को. कैसे फैसिलिटेट करते हैं? बाय इंटरचेंजिंग दी गैसेस. ये कार्बन डाइऑक्साइड को इन पैलिसेड मेसोफिल सेल्स तक पहुंचाते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस ये कर सकें. फाइन. And this is stoma. Around the stoma, these guard cells are present. Or what is the function of these guard cells? The function of guard cell is to regulate the stoma, regulate the opening or the closing of the stoma. यहाँ से gases इस leaf के अंदर भी जाती हैं और यहाँ से बाहर भी निकलती हैं. Fine. Now come towards the two situations faced by leaf cells. During daytime there is another situation, and during nighttime there is another situation. During daytime, when the mesophyll cells of a leaf are carrying out photosynthesis and respiration side by side, the oxygen produced in photosynthesis is utilized in cellular respiration, and carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis. देखें दिन के वक्त क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है. फाइन. तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या प्रोड्यूस्ड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोड्यूस्ड होती है? ऑक्सीजन. तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस्ड होती है इट विल बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस्ड होती है इट विल बी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. However, during night time, when there is no photosynthesis occurring, the leaf cells get oxygen from environment and release carbon dioxide through stomata. देखिए, during night photosynthesis नहीं होती because there is no sunlight. ठीक है. तो जब photosynthesis नहीं हो रही तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी. फिर सेल्स रात के टाइम रेस्पिरेशन तो करेंगे ना, तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे? एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेंगे. और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या प्रोड्यूस्ड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है. क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज नहीं होगी. ठीक है. तो प्लांट सेल्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू एक्सेल आउट कर देंगे, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे. फाइन. आई हैव कंक्लूडेड दिस पैराग्राफ इनटू दीज टू इक्वेशंस. देखें, ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर. ये जो ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट हमें मिल रही है, ये कहाँ पर यूज होती है? रेस्पिरेशन में यूज होती है. फाइन. और रेस्पिरेशन के दौरान क्या प्रोड्यूस्ड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रोड्यूस्ड हो रही है इट विल बी यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस. ठीक है.
दिन के वक्त ये यूटिलाइज्ड हो रही है फोटोसिंथेसिस में, बट ड्यूरिंग नाइट टाइम देयर इज नो सनलाइट, सो देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड नहीं होगी, तो फिर प्लांट रेस्पिरेशन तो करेंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम भी, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, वो अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होगी इट विल बी एक्सेल आउट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। फाइन। वुडी स्टेम्स, ये जो हमने पीछे पढ़ा ये किस में हो रहा था, ये यंग स्टेम्स में हो रहा था और लीव्स में हो रहा था। अब वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स में क्या होता है, द इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क विच इज इम्पर्वियस टू गैसेस और वाटर। जो वुडी स्टेम्स होती हैं या मैच्योर रूट्स होती हैं वो उनकी जो सरफेस होती है वो किससे कवर्ड होती है, बार्क से कवर्ड होती है, और ये बिल्कुल इम्पर्वियस है गैसेस और वाटर के लिए, कोई भी गैसेस या वाटर यहाँ से पानी वगैरह नहीं गुजर सकता। ठीक है, फिर वहां पर गैसेस एक्सचेंज कैसी होती है इन वुडी स्टेम और रूट्स में, देयर आर सर्टेन पोर्स प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ बार्क कॉल्ड लेंटिसल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या मौजूद होता है, लेंटिसल्स मौजूद होते हैं विच अलाउ एयर टू पास थ्रू दैम। ठीक है, ताकि एयर वहां से पास हो सके, क्योंकि वुडी स्टेम्स में स्टोमेटा मौजूद नहीं होते, और जो एंटायर सरफेस होती है उनकी वो किससे कवर्ड होती है, बार्क से कवर्ड होती है, और ये जो बार्क है इट इज इम्पर्वियस टू गैसेस एंड वाटर। ठीक है, तो वहां क्या मौजूद होते हैं, लेंटिसल्स मौजूद होते हैं। These lenticels are slightly more raised than general surface of the stem. ये जो lenticels होते हैं ये थोड़े से उभरे हुए होते हैं। I will show you in next slide इंशाल्लाह। Gases diffuse in and out of the general surface of the young roots. The gases are found in the soil surrounding the roots. जो roots होती हैं, जो ये young roots होती हैं, उनमें gases कैसे exchange होती है, वो easily उनकी surface के through ही हो जाती है। ठीक है, जो रूट्स के सराउंड सॉइल होती है वहां से गैसेस एक्सचेंज इजीली हो जाती है। एक्वेटिक प्लांट्स कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स गेट ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते भी वाटर से ही हैं, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। फॉर्मूला क्या है वाटर का, H2O है, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वाटर में, तो वो वहीं से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में ही रिलीज करते हैं। फाइन। Now look at these diagrams. These diagrams show the lenticels. देखें ये lenticels आपको नजर आ रहे हैं, ये थोड़े से slightly raised हैं। ठीक है, ये जो stem है mature stem है, यहाँ पर ये lenticels मौजूद होते हैं for the purpose of gases exchange. Okay. Now what is difference between stoma and lenticel? Stoma located in epidermis and lenticel located in periderm. स्टोमा कहाँ मौजूद होते हैं, एपिडर्मिस में, और लेंटिसल कहाँ मौजूद होते हैं, पेरिडम में। पेरिडम क्या है, एक सेकेंडरी थिकनिंग के दौरान एक बार्क बन जाती है वुडी स्टेम्स के अराउंड, दिस इज नोन एज पेरिडम। स्टोमा कैन रेगुलेट इट्स ओपनिंग विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स, ये ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, वाइल लेंटिसल्स आर ऑलवेज ओपन, हमेशा ओपन ही रहते हैं। स्टोमा में क्या है, गार्ड सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। स्टोमा के जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और फोटोसिंथेसिस हो सकती है, लेकिन लेंटिसल्स में इट डजंट परफॉर्म। ठीक है, स्टोमा में क्या है, ट्रांसपायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज अगर, यहाँ पे ट्रांसपायरेशन भी हो सकती है, गैसेस एक्सचेंज भी हो सकती है, बट इन लेंटिसल्स गैसेस एक्सचेंज एंड लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज गिवन आउट। फाइन। So thank you so much. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.